But today I'm going to give you a Christmas message. लेकिन आज क्रिसमस का संदेश दूंगा. Hallelujah. हालेलुया. A fresh revelation from the Holy God. और पवित्र परमेश्वर से एक नया ताजा प्रकटीकरण. Turn to somebody, celebrate Christmas with me. किसी से कहो चलो मेरे साथ क्रिसमस मनाओ. I'll be talking on 3 stories, beautiful stories, the real stories that will expose you to know what is Christmas in your life. और मैं 3 ऐसी सच्ची घटी हुई कहानियां तुम्हें बताऊंगा जो जिसके द्वारा तुम जान पाओगे कि क्रिसमस सचमुच में क्या होता है. This was a true story. Let me begin like this. A true story about a preacher. तो ये सचमुच घटी हुई कहानी है प्रचारक के विषय में. You know, this preacher was driving towards the church. He was under a lot of stress. और ये प्रचारक जो है कलीसिया की ओर जो है गाड़ी चलाकर जा रहा था और बड़े तनाव से भरा हुआ था. As he was going, और जैसे वो जा रहा था, there was a young guy. Because it was a season of Christmas, there was a lot of traffic jam. तो वहां पर एक जवान, क्रिसमस के मौसम होने के कारण बहुत ही ट्रैफिक जैम था. You know, one young fellow तो एक जवान आदमी is going friend and is giving a sudden break. वो आगे चला रहा है और अचानक ब्रेक दे रहा था. This frustrated preacher, ये प्रचारक जो तनाव में था, he removed the window, he down the window of the car. और उसने अपने कार की जो खिड़की थी उसे नीचे उतारा. He said, hey, और वो उसने कहा, चिल्लाया जोर से, a "Hey!" young teenager. और वो जवान लड़का He looked at him उसे देखा and he waved the hand. और फिर उसको हाथ ऐसे किया. And the preacher got more frustrated. प्रचारक को और गुस्सा आया. What are you waving? Why are you showing your hand? क्या तू तो अपने हाथों को ऐसे क्यों हिलाकर दिखा रहा है? You come, put your car on the side. I will show you who I am. तो तू तेरे कार को बाजू में खड़ा कर दे, मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ. And this young man said, और ये जवान लड़के ने कहा, let's park it in the mall. कहने लगा चलो हम मॉल में उसे पार्क करते हैं. And because the traffic was too much, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, they couldn't turn the car. गाड़ी को जो है वापस नहीं ले सके. But what the preacher said, लेकिन प्रचारक ने क्या कहा? hey, don't play with me. प्रचारक ने कहा मेरे साथ तो खिलवाड़ मत And the कर. young man said, जवान व्यक्ति ने कहा better you go further. I will follow you wherever you are going. बेहतर होगा कि तुम आगे ही जाए, फिर तो तुम जहां पर चाहते हो उसके पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा. Further distance, this young man followed the preacher. और कुछ फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि ये प्रचारक की गाड़ी के पीछे पीछे ये जवान लड़का जो है वो अपनी गाड़ी लेकर जाने And लगा. suddenly something happened to this young man. अचानक कुछ हुआ इस जवान व्यक्ति के साथ. You know, he took the left turn and the preacher left. अचानक क्या हो गया, उसने लेफ्ट टर्न ले लिया और फिर वो प्रचारक सीधा चला गया. But this young man, लेकिन ये जवान आदमी, what he had inside, उसके अंदर क्या था? he deposited in the preacher that time, transformed something inside that preacher. और उसी समय उसने वो प्रचारक के अंदर कुछ बातें डाली. He activated something in this preacher. ये प्रचारक के जीवन में कुछ सकारात्मक बातें डाली. You know what he activated? जानते उसने क्या डाला? He activated ponk in his life. Ponk means mischievous spirit. तो उसके Ponk. अंदर Say with me, ponk. उसके अंदर New एक word. मजाक खिलवाड़ करने की आत्मा डाली. Hallelujah. I call it ponk in English. If you go to a dictionary, it is called mischieving spirit. तो अगर डिक्शनरी में जाकर देखेगा, पोंक का मतलब है कि जो है मजाक करने की जो Or है mischievous spirit. Mischievous, naughty. Naughty. मस्ती करने की. मस्ती, mischievous. क्या बोलते हैं? मजाक मस्ती करने की आत्मा. He released that ponk. He activated that ponk spirit in this preacher. तो ये प्रचारक के अंदर से मजाक मस्ती करने की आत्मा डाल दी. Hallelujah. Everybody has this ponk activated from the past. तो सबके अंदर ऐसे एक मजाक खिलवाड़ करने की आत्मा है जो पहले से डाली हुई You है. pretend you're so holy, so pure, so holy. Hallelujah. Praise the Lord. तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो कि तुम बहुत ही पवित्र हो, But the behavior of the old is not gone. लेकिन पुराने जो स्वभाव है वो निकले नहीं. Hallelujah. That ponk is still there. वो हंसी मजाक करने की आत्मा अभी भी है. That ponk, mischievous spirit is still there. अभी भी वो हंसी मजाक करने की आत्मा अभी भी. Say with me, Lord, deliver me from this ponk spirit. कहो कि प्रभु मुझे ये हंसी मजाक की आत्मा से छुटकारा दे दे. कहो. अरे जोर से तो बोलो ना.
Okay. Only serious about the Bible. केवल बाइबल के बारे में Bible has a name for this kind of behavior. बाइबल के अंदर एक नाम है ऐसे बिहेवियर, ऐसे स्वभाव का, It's called sin. उसे पाप कहते हैं. You got it? That punk that is in you, you may call yourself holy, pure, but that past punk in you, the Bible says it is sin. तो तुम्हारे अंदर जो है भले ही तुम दिखाते हो कि तुम पवित्र हो और शुद्ध की आत्मा दिखाते हो, लेकिन पहले से ही वो जो हंसी मजाक की जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर है, और बाइबल उसे पाप कहता The है. pretension of punk is inside you. तो वो हंसी मजाक करने की जो आत्मा है उसमें जो है तुम्हारे अंदर पहले से ही है. You're baptized, you're born again, you're filled with the Holy Spirit. तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, तुम पवित्र आत्मा से भर गए हो, But that punk is always inside you. लेकिन तुम्हारे अंदर वो हंसी मजाक है. It is always around you. तो तुम्हारे इर्द गिर्द वो है. What is that punk? तो वो क्या है? वो हंसी मजाक, Carnality, वो जो है शारीरिकपन, anger, गुस्सा, क्रोधित होना bitterness, और कड़वाहट रखना, hatredness, किसी को नफरत करना, frustration, फ्रस्ट्रेट होना, speaking unkind words. दूसरों के प्रति जो है गलत जो है बुरे शब्द बोलना. These are the punk works in a right place. तो ऐसे जो चीजें हैं हंसी मजाक वो सही जगह पे काम करती है. You may say, I've said for a long time, brother. तुम शायद कहते होंगे कि मैं बहुत समय के लिए रुकूंगा. But sometimes this punk is activated, you become anger. कभी कभी तुम्हारे अंदर ये आत्मा से ऐसी निकलती है कि तुम्हें अंदर से गुस्सा आता है. Hallelujah. How many want to be delivered from this punk spirit? तुम्हें से कितने लोग जो है इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं? Yes, we all have to get deliverance. सबको छुटकारा पाना है. That is why Jesus in Matthew 1:21 the Bible says, you shall call his name Jesus to Mary. मत्ती 1:21 कहता है कि वो तुम उसका नाम यीशु रखना For मरियम, he will save his people from their punks. क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पोंक से बचाएगा, Sin से बचाएगा, पाप से पापों से बचाएगा. उद्धार करेगा. Can I hear an amen? So that means Jesus has another name. The name is Yahweh. यानी यीशु का एक और नाम है जिसे यावे कहते हैं. Yahweh means God saves. यावे का मतलब है प्रभु बचाता And है. Yahweh means Jesus. यावे का मतलब That है means यीशु, God, Jesus saves. यानी यावे यीशु बचाता है. It literally means Jesus saves you. उसका मतलब है कि यीशु तुम्हें बचाता है. He saves from sin. पाप से बचाता है He saves us from self. और अपने स्वयं के चीजों से He बचाता है. saves us from the way that we are losing the eternity. और हम जैसे अनंत काल को से अपने आप को खो लेते हैं, उस चीजों से वो बचाता है. We all have the spunk, the sin is activated some other way. तो ये पाप जो है किसी रीति से तो हमारे सबके अंदर है ही. Now think about, Jesus was born. विचार करो, अभी देखो He यीशु का was जन्म growing हुआ, up. वो बढ़ रहा था. After 30 years he was baptized. 30 साल के बाद बपतिस्मा Now हुआ. here comes Sadducees and Pharisees. यहाँ पे सदुकी और फरूसी आते हैं. And the Bible says बाइबल कहता है they all started to irritate Jesus. वो सब यीशु को सताने लगे, But Jesus never retaliate according to their words. लेकिन यीशु मसीह ने उनके शब्दों को प्रतिक्रिया नहीं दिखाया. They used to push him, they used to pull his buttons. और यीशु मसीह को धक्का मारते, But he never retaliated in hatred or anger. और लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई या गुस्सा नहीं He दिखाया. never retaliated in bitterness. कड़वाहट से उसने प्रतिक्रिया नहीं दिखाया. It's really remarkable when you look into the life of Jesus. तो यीशु के जीवन को अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है. That's why दिमाग के बड़े. Jesus paid the price on the cross for your sins and my इसीलिए sins. यीशु मसीह ने वो क्रूस पर वो दाम चुकाया तुम्हारे और मेरे पापों के He लिए. did it on the cross. उसने वो क्रूस पर किया. He openly, he was ashamed, and because of you and me. तुम्हारे लिए और मेरे लिए वो उसने पूरे लज्जा को ली अपने ऊपर. Hallelujah. Now listen, this important thing.
अभी ये महत्वपूर्ण चीज When we सुनो। believe in the salvation of Jesus Christ, जब हम यीशु के उद्धार पर विश्वास करते हैं, means Jesus died on the cross, इसका मतलब है यीशु मसीह क्रूस and पर we मरा believe in the heart, और उस पर हम हृदय से विश्वास करते that हैं, means He has overcome the sin, so we are free. यानी उसने पाप पर जय पाया है, उसके मतलब है Now हम listen. अभी आजाद हो चुके हैं। That means when Jesus comes in you, उसका मतलब जब यीशु तुम्हारे अंदर आते you know हैं, what does He do? जानते हो क्या करता है? When Jesus comes in you, I'm not talking about outside Jesus hanging on the cross who forgives and you overcome the sin. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह जब तुम्हारे अंदर आते हैं, मैं उस यीशु के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो क्रूस पर लटकाया दिखाई जाता है और तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, तुम्हारे पापों को उसने अपने ऊपर लिए When He नहीं। comes into your heart, जब वो तुम्हारे हृदय में आता है, He conquers sin. यानी पाप के ऊपर उसने जय पाया है। No, not on the cross. नहीं, केवल क्रूस पर नहीं। In the cross, He told the devil, I have destroyed your activities. क्रूस पर उसने शैतान से कहा कि Listen. मैं शैतान, मैंने तेरे सारे कार्यों को भी रद्द कर दिया But है। when Jesus comes in you, लेकिन जब यीशु तुम्हारे अंदर आते हैं, the pomp that is within you will be diminished. वो पाप जो तुम्हारे अंदर है वो पूरी तरह से नाश हो जाता है। All nature is destroyed. वो पुराना पूरा स्वभाव जो है पूरा नष्ट हो जाता We है। are not sinless, यानी नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर पाप ही नहीं, but Christ in you, you make sin less. और लेकिन जब मसीह अंदर आता है तो पाप का कोई जो है सामर्थ्य नहीं रहता है, ना, पाप कम करते हो। तो पाप कम हो जाता है। Hallelujah. Sin less. पाप कम। When Christ comes in you, जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आते हैं, He diminished the sins, the pomp. वो उसने पाप को जो है नाश कर दिया। But when Christ lives in you, लेकिन जब यीशु तुम्हारे अंदर जीना शुरू you करते become हैं, sinless. यानी तुम्हारे अंदर का पाप निकलता जाता है। Hallelujah. You want this to be diminished? क्या ये पाप तुम चाहते कि पूरी तरह से नष्ट हो जाए? You know what happens when Christ comes in you? जानते हो जब यीशु तुम्हारे अंदर आते हैं He तो क्या होता है? grows bigger and bigger and bigger in you. वो तुम्हारे अंदर और बढ़ता जाता है। The more Christ grows in you, जितना ज्यादा यीशु तुम्हारे अंदर बढ़ता you जाता है, start growing. उतना तुम बढ़ते जाते हो। Hallelujah. Hallelujah. One day when you stand before God in the day of judgment, एक दिन जब तुम प्रभु के सामने उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहोगे, He has sins and pongs that was within us. He has destroyed and He has diminished. वो पाप जो हमारे अंदर था वो सारे पापों को उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। Yes, there is a throne room. वहां पे सिंहासन का एक You are कमरा है। entering in the heaven court. स्वर्ग का कोर्ट में तुम अभी चल रहे हो, अंदर आप प्रवेश कर रहे हो। And just visualize this. अभी इसकी कल्पना करो, From far away somebody is sitting on the throne, दूर से तुम देखते हो तो कोई सिंहासन पर बैठा हुआ on है the mercy seat, और वो दया के सिंहासन पर and है He is waving the hand. और अपने हाथों को ऐसे हिला कर रहा He है is waving the hand. और हाथों को ऐसे हिला रहा है। And when you are entering in the gate of the heavens court, और जो स्वर्ग के कोर्ट में जब तुम अंदर जाते हो, hallelujah, you wave towards Him and you will say, He took it away. तो तुम अपने हाथों को उसको देखकर ऐसे लहराते हुए कहते हो कि यीशु ने सब ले लिया, यीशु ने सब कुछ ले लिया। Hallelujah. When you enter into heaven, जब तुम स्वर्ग में प्रवेश करते He हो, is sitting on the judgment throne. वो न्याय के सीट है उस पर बैठा हुआ है। Christ in you is diminished all the sin. जो यीशु तुम्हारे अंदर उसे सारे पाप को नष्ट कर दिया है। But when you see Him, when He waves your hand, और जब लेकिन तुम उसे देखते हो और वो तुम्हें देखकर अपने हाथों को लहराता है, you will say, He took it all. He took it all. फिर तुम भी अपने हाथों को लहराते हुए कहोगे यीशु ने सब कुछ अपने ऊपर उठा लिया, सब ले लिया, He took सब ले लिया। all my sins away. यीशु ने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले And लिया। this is the message of Christmas. क्रिसमस का संदेश यही है, He took it all. उसने सब ले He लिया, took it all. उसने सब कुछ ले लिया, He अपने took it ऊपर। all. अपने ऊपर सब कुछ ले लिया। Hallelujah. I'm going to make it very interesting now. Are you ready? अभी मैं और दिलचस्प जब बनाऊंगा, क्या तुम लोग तैयार है? This was just a अभी केवल ये क्या था?
परिचय था। This parichayata, introduction. Now the message. अभी संदेश। It's very pretty interesting to know. अभी बहुत ही अच्छी बात है जानना। The very text message was a Christian greeting. First time somebody sent a text message, it was a Christian greeting. December 3rd, 1992, a 22 years old British boy who was working in a company, through his boss computer, he sends a first text message that is called Merry Christmas. और दिसंबर का 3 तारीख को जो है एक जवान लड़का जो है अपने बॉस के कंप्यूटर के द्वारा जो है पहला जो संदेश उसने भेजा वो था मैरी क्रिसमस का। The word Merry Christmas was sent to his boss. तो उसने अपने बॉस को मैरी क्रिसमस का संदेश वहां से टाइप करके भेजा। And then onwards, the texting has been progressed so much today in the world. उसके बाद ही ये संदेश ऐसे भेजना पूरे संसार में पूरे जो है बढ़ गया है। Now the text has also vocabulary. अभी ये जो संदेश है उसका एक अपनी बोली भी है। If you are savvy in texting, you need to ask your little children. They will explain you what exactly it is. अगर आप लोग जो है नहीं जानते तो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पूछ सकते हैं वो आजकल जो मैसेज भेज रहे हैं उसका मतलब क्या है। Now the texts all are in observation. अभी जो टेक्स्ट है वो सब ऑब्जर्वेशन में है। Hallelujah. Now for example, उदाहरण पर say with me. You answer this. THX. What does it mean? Oh wow. Some people doesn't know. THX का मतलब क्या है? Come on, बोलो ना. मोबाइल में। See, so much we have progressed. देखो हमने कितनी उन्नति की In है। 92, 3rd December, this engineer, young boy, 32 Britisher, he sends first text message, Merry Christmas, to his boss. 1992 में एक छोटा सा लड़का जो है अपने बॉस को जो है ऐसे एक मैसेज भेजता है मैरी क्रिसमस का। Hallelujah. Now it is progressed so much. अभी इतना उन्नति कर पाया वो शब्द। पहले full pant था, अभी half pant में आ गया, right? Hello. What is the meaning of BTW? BTW का मतलब क्या है? Oh. अभी मैसेज में डालते हैं ना व्हाट्सएप में BTW। By the way. By the way. What is the meaning of LOL? Come on, somebody. Are you sure? LOL का मतलब है laugh aloud. What is the meaning laugh of out aloud. FYI? Whoa. FYI का मतलब है for your information. For your information. What is the meaning of IDK? Even I don't know. Hallelujah. You know what is the Christmas message? ID. Okay. What is the meaning of MIA? No. Hello. That's what you don't know. IDK. IDK. MIA. Okay, let me tell you. Manoj is awesome. Hello. Stay with me. Pastor, किधर से किधर लेके जा रहे हो? Texts are good. Texts are good. टेक्स्ट भेजना अच्छी बात है। Voice mails are good. वॉइस मैसेज भेजना भी अच्छी बात है। But that's not really communicating. लेकिन वो उसे नहीं कहते कि कम्युनिकेशन करना। If you have brilliancy, if you are connected to the Spirit, you will understand where I'm going to connect this. अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी चतुरता है, अगर आत्मा में तुम जो है एक्टिव हो, तो फिर तुम समझ जाओगे मैं क्या कहाँ ले जा रहा Now हूँ। in the first story, we learnt about the ponk. तो पहले कहानी में हमने क्या सीखा? पाप के विषय That में। young boy activated in that preacher that old ponk. तो वो जवान लड़के ने वो बूढ़े प्रचारक के अंदर वो पाप डाला। And then we see फिर हम देखते Jesus हैं, died on the cross. फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर When he मरा comes in you, और जब वो तुम्हारे अंदर it आता है diminishes that ponk, वो सारे पाप को that old nature. नष्ट करता है, वो तुम्हारे पुराने स्वभाव को, And then he start living, growing bigger and bigger. और फिर वो तुम्हारे अंदर बढ़ता जाता है And then you become sinless. और इसलिए तुम्हारे अंदर फिर पाप नहीं रहता। Hallelujah. Then the second thing we learn about short messages. और फिर हमने क्या सीखा? छोटे छोटे मैसेज के बारे में। Texts are good.
ये सब टेक्स्ट भेजना बहुत अच्छी बात है, Voicemails are good, आवाज से अपने संदेश भेजना बहुत अच्छी बात है, but that's not really communicating. लेकिन उसे नहीं कहते कि कम्युनिकेशन। Okay. There was a husband and wife. So the second story I'm going to tell you. अभी एक और कहानी बताऊंगा। You like kahanis? Kahanis? Okay. Today no Elijah, Elisha. I'll teach on from kahanis. आज एलिया एलिशा के बारे में लेकिन कहानी है। There was a husband and wife एक पति पत्नी थी, who had a rough time in their family. परिवार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा And था their marriage was so destroyed. और उसके कारण वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल You रहा know, था। the mother stayed away from the children, 2 children. माँ अपने दोनों बच्चे से अलग थी You know, she was so depressed. और वो इतने तनाव में She थी, used to go and hit the walls. तो जाकर अपने सर को दीवार से टकराती, She was in deep dark depressions. बहुत बहुत तनाव से भरी So हुई one थी। fine day she left the 2 children and the husband. She left the house without any information. और एक दिन ऐसा हुआ, उसके कारण तनाव के कारण वो अपने दोनों बच्चों को और पति को बिना बताए निकल गई घर And the से। husband is texting her so many times, wife, I love you, please come back home. और पति कितने बार उसको जो है मैसेज भेज रहा है, टेक्स्ट भेज रहा है कि पत्नी मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तू वापस आजा, घर लौट जा, Wherever you are, please come back. जहां पर भी तू है वापस आ जा। Many times he is calling, she is not picking up the call. बहुत बार उसने फोन कॉल भी लगाया, फिर भी वो फोन नहीं उठा रही And थी। many times she switch on the phone and there is a voice of sobbing and crying. बहुत बार वो जो है फोन भी उठाती थी लेकिन बातें नहीं करती, केवल उसके रोने की आवाज आती। But many times she used to reply their messages. कभी कभी तो वो उनकी संदेश को रिप्लाई भी करती, But she was not traced where she was. लेकिन कहाँ पर वो थी वो मिली नहीं। And finally the husband find out a detective. अचानक फिर वह उसके बाद पति क्या करता है, वो डिटेक्टिव को ढूंढता है। And he asked her, sir, can you help me? वो जासूस को कहता है कि क्या तू मेरा सहायता कर My सकता wife है? has left the house. मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई She है, is not messaging me now. वो मुझे संदेश नहीं अभी She is भेजी, not picking up the call. वो फोन भी नहीं उठा रही है। Thousands of messages, text I have done. मैंने बहुत हजारों में जो है उसे जो है मैसेज Many है, times I called, voicemails. बहुत बार मैंने उसे फोन किया और वो आवाज से, मेरी आवाज Sir, से could मैसेज भेजा, Sir, could you help me? सर तुम्हारे सहायता कर सकता हो? And this detective, and he started to detect the messages. और फिर ये डिटेक्टिव जासूस जो है सब संदेशों को पढ़ने लगा। By his source, he found out where she was living. तो उस संदेश के द्वारा उसे पता चला वो कहाँ रहती They है were able to trace where she is living. और उसके कारण वो जान पाए कि कहाँ पर वो रहती है। And that day was Christmas Eve. और उस दिन ऐसा था, वो क्रिसमस का दिन था And the husband takes his 2 children, और जो है वो पति जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर जाता है, started to find out where she is living. उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है कि कहाँ पर वो रह रही And है। inside, और अंदर she is sitting in a dark room. वो एक ऐसे काली कोठरी में बैठी It थी is a roadside hotel. और रोड साइड का रास्ते पर जो है पड़ा हुआ एक होटल It था। was so dark. वो इतना अंधेरा था उसमें, No one goes and stays in that place. वो होटल में कोई जाकर रहेगा भी It is नहीं। a cheap bed were put in that rooms. सबसे सस्ता कमरे थे उसके खटे It थे was so dirty. और इतनी गंदी थी वो, And she is smoking. और वहां पे वो सिगरेट पी रही And थी, she's throwing the cigarettes. वहीं पर वो सिगरेट फेंक रही है। And the carpet was caught up with a little fire. और जैसे उसने सिगरेट पीकर ऐसे उन्हें फेंक दिया तो कारपेट जो था उसमें आग लग गई। She's sobbing and sobbing and sobbing, but she is in the dark, deeper depression in that room. और वो रो रही है और इतने पूरे डिप्रेशन से भरी हुई थी उस And I कमरे want to में। tell you this evening, this morning. शाम को, इस सुबह को तुम्हें कहना And चाहता हूँ, here goes the husband with the 2 children knocking at the door on the Christmas Eve. और यहाँ पे पति जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर क्रिसमस के दिन में उस बच्चे को लेकर जाता है She's sitting in the dark, dirty room. और वो गंदी कमरे में वो काली कोठरी में बैठी है So worried, so sobbing in her spirit. और इतनी चिंतित और आत्मा में रो रही She है। never opened the door. उसने दरवाजे को नहीं But खोला, finally, after knock on the door, लेकिन अंत में बहुत दरवाजा खटखटाने के बाद she opens the screen
of the window and she sees the husband and the two children on the Christmas Eve. तो अपनी खिड़की से जो है पर्दे को उठाती है और तो देखती है थोड़े से छोटे से कोने से और देखती कि मेरा पति बाहर खड़ा है दो बच्चों के साथ में. And the story is the real story. This is the real story. ये सचमुच में घटी हुई कहानी है. And she opens the door. और वो दरवाजा खोलती है. She falls upon the husband's arm and the children's arm. और वो बच्चे और पति के कंधों पर गिर जाती है. And she is crying and crying immediately. On the other side, immediately she is packing the kapda and she is going with the family back. और वो रो रही है और तो उसी समय रोते रोते ही अपने कपड़े को तुरंत पैक करती है और उनके साथ में वो निकल पड़ती है. There was not a word said. वहां पे एक भी शब्द बोला नहीं है. There was no conversation. कुछ बातें नहीं उनके बीच में. But she left with them. लेकिन वो उनके साथ में निकली. You know, there was a Christmas celebration. क्रिसमस मनाया जा रहा था वहां Few पर. weeks later, कुछ सप्ताहों के बाद all settled down. सब ठीक हो गया. Children goes to school. बच्चे स्कूल जाने लगे. Now husband is talking to his wife. अभी पति अपने पत्नी से बातें कर रहा है. Tell me, मुझे बता, why you decided to come home? तूने क्यों निर्णय लिया वो घर वापस लौटाने का? I sent you so many texts, मैंने तुझे कितना सारा मैसेजेस भेजा था. numerous phone messages. कितने सारे फोन पे मैसेज के ऊपर मैसेज भेजा. I begged you to come home. I मैंने love कितने you. निवेदन तुझे किया, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ वापस लौट आ करके. I loved you much. और तुझे इतना प्यार किया था मैंने. I wanted you to come home. You wouldn't do it. मैं चाहता था कि तू वापस घर आ, लेकिन तू वापस नहीं आ रही थी. You know what was her answer? जानते हो क्या उत्तर देती है? She said, वो कहने लगी, they were only words until you come. वो मेरे लिए केवल शब्द थे जब तक तू स्वयं वहां पर नहीं आया. They were only words until you came. मेरे लिए तो केवल एक शब्द बोले गए शब्द थे जब तक तू वहां पर स्वयं नहीं आया. Are they with me? God sent the law. प्रभु ने नियम दिया. God sent the 10 commandments. प्रभु ने हमें 10 कानून दिए. God sent prophets. प्रभु ने हमें 10 नबियाँ दिए. God sent angels. स्वरदूतों को भेजा. God sent messengers. संदेश भेजे. God sent his Old Testament prophets. प्रभु ने अपने पुराने नियम के नबियों को भी भेजे. God sent his major words and minor words. प्रभु ने बड़े शब्द छोटे शब्द भी भेजे. Are they with me? Are you getting this point? Hello? Are you getting this point? Are you excited or no? Hallelujah. But they were just words until when in Bethlehem when Jesus came in flesh. और वो केवल शब्द थे जब तक यीशु मसीह बेथलेहम में नहीं आए शारीरिक रूप में. Hallelujah. Are you there with me? Your text message will be only a text unless you don't reveal yourself. और तुम्हारी टेक्स्ट मैसेज केवल टेक्स्ट मैसेज रहेगी जब तक तुम अपने आप को प्रकट नहीं करते. Hallelujah. When he came suddenly, जब वो अचानक आ जाता है, that words took a deeper meaning. और वो शब्द ने जो कहे गए वाक्य थे उसमें गहरे अर्थ निकले. Until you came before me, it was only words. जब तक तू मेरे पास नहीं आया था तब मेरे लिए केवल वो शब्द थे जो कहे गए थे, Old लिखे गए Testament थे. prophets, Old Testament prophets, the old commandments, the words, minor, major prophets, everybody was speaking. और पुराने करार के जितने भी नबी थे और जो बड़े नबी थे छोटे नबी थे उन्होंने कहा था, लेकिन वो कहे गए शब्द थे केवल. Hallelujah. 2000 years back, 2000 साल पहले Jesus said, यीशु ने कहा, I can't just send the same words. वही शब्द को मैं वापस अब नहीं भेज सकता हूँ. I can't send the same words. मैं वही शब्द को नहीं भेज सकता हूँ वापस से. Where is your Christmas? तुम्हारा क्रिसमस कहाँ पर है? You are so tired cleaning the house, I feel. घर साफ सफाई करते करते तुम लोग थके Clean हुए लग रहे yourself, हैं. you will be happy. अपने आप को साफ करे तो और खुश हो जाएंगे. Jesus said, यीशु ने कहा, I can't send
the same words in which I sent in the Old Testament. पुराने करार में जो शब्द मैंने भेजे थे वही शब्द को मैं नहीं भेज सकता हूं अभी। Hallelujah. His name shall be called Emmanuel. That means God with us. उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे क्योंकि उसका मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ में His है। name will be called Jesus. उसका नाम यीशु कहा He गया है, saves us from sin. जो पाप से हमें बचाता He है saves us from self failures. और सारे हार से हमें बचाता He है will save us from shame. और हमें लज्जा से बचाता है। You know, when Jesus comes in our heart, जानते हो जब यीशु हमारे दिल में आते हैं there will be a peace with God, प्रभु के साथ में शांति बनती peace है, with men. मनुष्य के साथ शांति। Hallelujah. Are you there with me? Something is wrong with you, or something is wrong with my preaching? तुम कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? या तो मेरा प्रचार में कुछ प्रॉब्लम है या तो तुमसे कुछ प्रॉब्लम है। Hello. Are you getting the revelation? If you don't get this revelation, your Christmas is nothing for you. अगर ये प्रकटीकरण नहीं मिलेगा तो फिर क्रिसमस तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। God gave peace to the emotions. प्रभु ने उनके भावनाओं में शांति दी। God brought the greater understanding about the kingdom of heaven. स्वर्ग के राज्य के बारे में बड़ा समझ लाया। Only when Jesus himself was the word revealed in flesh. कब हुआ? जब यीशु मसीह जो स्वयं वचन है जब वो शारीरिक रूप से उतर आया। The message of Christmas, write down, the message of Christmas, he did not send through text or a voicemail words. क्रिसमस का संदेश यही है कि उसने वो कोई टेक्स्ट या कोई अपने आवाज के द्वारा नहीं भेजा, But he came himself. लेकिन वो स्वयं आया। And he carried the sins of the whole world. पूरे जगत का पाप उसने अपने पर लिया। And we can point out to him and say, he took it away. और हम उसके तरफ हाथ उठाकर कह सकते हैं कि उसने सब कुछ उठा लिया। He took the pong that was living in me. मेरे अंदर जो पाप था उसे उसने निकाल दिया। And he has forgiven me because I accepted him as my और personal उसने मुझे savior. क्षमा किया क्योंकि मैंने उसे अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में निजी रूप से अपनाया। You know, the message of Christmas, जानते हो क्रिसमस का जो संदेश है you have to experience him. तुम्हें उसे अनुभव करना है। Can I hear an amen? That is the second story I told you. तो वो दूसरी कहानी है जो मैंने तुम्हें बताया। Now the third story, and then we'll close. तीसरी कहानी फिर अंत करेंगे। What was the first story? पहले कहानी कौन सी थी? He activated the pong inside the old pong. The old nature was there. और वो पुराने प्रचारक के अंदर जो है उसने वो पाप को जो है सक्रिय कर दिया उसका, क्योंकि पुराना स्वभाव उसके You अंदर may be पहले से holy, था। pure, worship God, but still that old nature is there. तुम पवित्र रहोगे या प्योर रहोगे, शुद्ध रहोगे, लेकिन वो पुराना जो स्वभाव है पहले से अंदर है। Can I hear an amen? Now this is very interesting for Christmas. अभी ये बहुत ही दिलचस्प है क्रिसमस के You know, लिए। there was a man who was alcoholist. एक ऐसा व्यक्ति था जो शराबी था। So his friend saw his friend who is alcoholic. उसका जो दोस्त है अपने दोस्त को देखता है जो शराबी He है। saw him, he was destroyed by this alcohol. उसने देखा कि ये शराब के द्वारा ये नाश हुआ जा रहा He है, decided in his mind, तो अपने मन में वो निर्णय I लेता will है, go to my friend where he is sitting in the bar, मैं जाऊंगा वो जहाँ पे वो शराब पी रहा है उस जगह पर, and I will talk to him about what is reality about और मेरे alcohol. दोस्त को मैं बताऊंगा कि शराब क्या कर सकता I है। have to tell him, you are destroying yourself. मुझे उसे बताना जरूरी कि तू अपने आप को नाश किया जा रहा One, है। he goes to the bar एक दिन वो शराब खाने जाता है, and he calls his friend, वो अपने दोस्त को बुलाता the है, alcohol friend, अपने दोस्त जो शराबी है उसे who is बुलाता है, stinking and smelling. और जिसके अंदर से बदबू आ रही थी, He made him to sit at his table, वो अपने मेज पर उसे बिठाता and है he called the waiter. और फिर उसे जो है वेटर को He बुलाता है said, give me 2 off shots और उसे कह glass. कि मुझे 2 ग्लास देना जो आधा पेक and का है, bring me 1 alcohol which is very, very hot. और ऐसा एक शराब लेके आना जो बहुत ज्यादा गर्म है, Hallelujah. And bring me a bottle of water. और एक पानी का बोतल लेकर And आना, he pours in 1 glass alcohol, in another glass the water. और एक ग्लास से जो एक हाथ से जो है शराब डालता है, दूसरे हाथ से जो है उसमें पानी डालता है, Hallelujah. Off shot. आधा, And then he puts his hand in his friend's pocket and removes 2 worms.
और उसके दोस्त के पॉकेट से जो है 2 कीड़ों को निकालता है, and he puts in one in water and one in alcohol. और एक पानी में डालता है और एक शराब में डालता है। Hallelujah. Within seconds, कुछ सेकंड के अंदर the ही worm which was in the alcohol, he dies. वो जो कीड़ा, वो जो शराब के अंदर था, वो मर जाता है। Hallelujah. And one worm that was in the water, it was live. और एक कीड़ा जो Living. पानी के अंदर था, वो जीवित रहता है। You got my point? क्या तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? Friend, you got my point? मेरा दोस्त, क्या तू समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? The worm died in the alcohol. और वो जो शराब के अंदर था, वो मर गया। क्या मर गया? Alcohol. कीड़ा मर गया। The worm in the alcohol died. वो कीड़ा मर गया जो You शराब में got my था। point? क्या तुम समझ गए? Let somebody say, you got my point? Then his alcohol friend, फिर उसका जो शराबी दोस्त था, I got it. हाँ मैं समझ गया। Tell me what you got it. बताओ कि तुम्हें क्या समझ आया इसके बारे में? He turned to his friend वो अपने दोस्त के पास मुड़कर कहता है and said, I see the point. वो कहने लगा कि मैं समझ गया तो क्या कहना चाहता है। I see the point. मैं समझ गया तो क्या कह रहा है। The friend is asking, दोस्त पूछ रहा है, did you see the point? You got the point? क्या तू समझ गया क्या कहना चाहता है? Then the friend says, दोस्त कहता the है, alcohol man, वो जो शराबी है वो कहता है, I see the point. हाँ मैं समझ गया। Hello. Many times we don't get the point, but we see the point. बहुत बार तो हम समझते नहीं लेकिन हम देख सकते हैं बोलते हैं। The friend said, दोस्त कहता है, what did you understand, my friend? मेरा दोस्त तुझे क्या समझ में आया? He said, I totally see what you are trying to tell me. मैं पूरी तरह से देखता हूं कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है। That if you drink an alcohol, you will never have worms in you. यानी अगर तू शराब पिएगा तो तेरे अंदर कीड़े नहीं रहेंगे। I see the point. हाँ मैं समझ गया तो क्या कहना चाहता है। Did you got the point? क्या तू समझ गया? So if you drink, I see the point, my friend. मेरा दोस्त मुझे समझ में आ रहा है। What are you trying to tell me? तो तू क्या कहना चाहता है? If you drink the alcohol, अगर तू शराब पिएगा, oh, there will be no worms in you. तो मेरे अंदर कोई कीड़े नहीं रहेंगे। Many people see Christmas in this way. बहुत लोग क्रिसमस को भी ऐसा ही देखते They हैं, miss the point. यानी जो मुख्य बात है उसे ही भूल जाते They हैं। see light, they see trees, they see gifts, but they miss the point. तो वो झाड़ को देखते हैं, तो फिर वो जो तारे को देखते हैं, सब डेकोरेशन को देखते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है उसे ही भूल You जाते should हैं। visit Sharon's house, fully decorated. शारन के घर पे जाना चाहिए, पूरा सजाया हुआ रहता है। Wow, hallelujah. You got the point? समझ गए? Hello. You got the, say na, I got the point. कहो कि मैं समझ No, no, गया। you never got the point, you see the point. नहीं, तुम्हें मिला ही नहीं वो जो बात है। You see the point, तुम देखते हो but you never got the point. लेकिन तुम उसे समझते नहीं। The one who sees the point, वो जो देखता है he missed the point. वो उसे खोता है। Say with me. The one who sees the point, वो जो देखता है, the one who sees the point, क्या बोलते हैं वो exact? हाँ? जो मुद्दे को देखता है, So he missed the mudda. वो मुद्दे को भूल जाता है। Hallelujah. Did you got the mudda? क्या Hello. तुम्हें मुद्दा मिल गया? Have you got the point? क्या तुम्हें वो मुद्दा मिल गया? अभी तक नहीं मिला है. You only see the mudda. केवल मुद्दे को देखते Oh, हो। let's go to Crawford Market. हाँ, कहते कि चलो क्रॉफर्ड मार्केट जाते हैं, सस्ता मिलेगा. वहां पे सस्ता मिलता है। My God, for my Jesus festival, you're bringing सस्ता चीज. मेरे यीशु के लिए क्या तुम सस्ते चीजें लाते हो? शी. You're talking about Jesus, the one who saved the world. अरे तुम उस यीशु के बारे में बोल रहे हो जिसने पूरी दुनिया को Have you बचाया। got the point? क्या तुम समझ गए क्या कहने का मुद्दा क्या है? Now ask me, अभी पूछो, what are you trying to tell? तो तुम कहना है क्या चाहते हो? I'm trying to tell you, you see the lights, you see the gifts, you see the trees, but you still miss the point.
मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लाइट्स को देखते हो, तुम झाड़ को देखते हो, तुम तोहफों को देखते हो, लेकिन जो मुद्दा है उसे ही भूल जाते हो। The tree, when you see, लेकिन जब उस झाड़ को देखते हो, I visualize like this. It is the Calvary tree where Jesus was hung on the tree. मैं जब उस झाड़ को देखता हूँ तो वो क्रिसमस के झाड़ को देखता हूँ तो मुझे वो दर्शन आता है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर, उस झाड़ पर When लटकाया I गया। see the lights in the Christmas, जब क्रिसमस के सारे लाइट्स को मैं देखता हूँ, लाइटिंग it को, makes me to understand Jesus is the light of the world. तो ये बात मुझे समझाता है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। When I see the gift, जब मैं सारे तोहफों को भी देखते it देखता reminds me God so loved the world and He gave His only begotten Son, but none should perish, but everyone should have an everlasting life. कि परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि ताकि किसी का नाश ना हो, उसने अपने बेटे एकलौते पुत्र को दे भेज दिया इस It संसार में। reminds me about the Calvary. तो कलवरी को याद It दिलाता है। reminds me that Jesus is the light of the world. ये बात मुझे याद आता है कि यीशु मसीह जगत की It ज्योति है। reminds me Jesus is the gift to save my soul. ये बात मुझे याद दिलाता है कि यीशु मसीह वो तोहफा है जो मेरे प्राण के लिए आया। If you are careful, यदि तुम ध्यान दोगे you see what's going on, और तुम समझ पाओगे कि क्या you चल रहा है, will never miss the point. तो तुम उस मुद्दे को नहीं चुकोगे। If you only see the point, अगर तुम उस मुद्दे को केवल देखते you रहोगे will miss the point. तो उस मुद्दे को तुम खो If दोगे। you get the point, लेकिन उस मुद्दे को यदि you will समझोगे never miss the point. तो वो मुद्दे को कभी नहीं Turn to चुकोगे। somebody and say, don't miss the point. किसी से कहो कि मुद्दे को बिल्कुल नहीं खोना। You know what is the point? जानते हो मुद्दा क्या है? Point is Jesus came to save the sinner. मुद्दा यही है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए Point आया। of Christmas is Jesus came to save you from sin. क्रिसमस का मुद्दा यही है कि यीशु तुम्हें तुम्हारे पापों से बचाने के लिए जगत में The आया। point is कहने का मुद्दा ये है। Jesus is the light bringing in the darkness. तो यीशु मसीह वो अंधकार में जीवन लाता He है। brings the peace. He brings the peace within. वो शांति लाता है और अंदर एक शांति लाता है, Peace to others. दूसरों को शांति। Have you missed the point? क्या तुमने मुद्दा खोया है? Looks मुद्दा को चूक दिया है? like you're so tired and ऐसे लग रहा है तुम लोग बहुत थके हुए हो, चिंतित हो। When I got this revelation, I said, Lord, there जब- is something you're talking to me. जब मुझे ये प्रकटीकरण मिला तो मैंने कहा प्रभु तू मुझसे कुछ कह रहा है। Hallelujah. You know, in the Christmas Eve, there is a candle that is lit with fire, right? क्रिसमस के समय में ऐसा एक मोमबत्ती है जो जलाते हैं। They don't know आग के पास। why they are lighting the candle. कुछ लोगों को अभी पता नहीं कि वो आग के पास वो जब मोमबत्ती क्यों जलाते हैं। The candle represents the God so loved the world वो मोमबत्ती का मतलब है कि परमेश्वर ने पूरी जगत से इतना प्रेम किया that he is the light of our dark life. हमारे अंधकार जीवन के लिए वही ज्योति है। You cannot have the joy of Christmas क्रिसमस का आनंद नहीं मना सकते without worshiping Jesus. प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना किए बिना। How many stories I told you? कितनी कहानी मैंने बताई तुम्हें। Is it meaningful for your Christmas? क्या ये क्रिसमस के लिए कोई अर्थ लाता है? The first story about the preacher who had Pong old nature. पहला कहानी वो प्रचारक के बारे में जिसके अंदर वो पापी स्वभाव था। The second is about the family. दूसरा परिवार के विषय में है। Happy Christmas. Year after, stop sending the message. Go to your believer's house and say Happy Christmas. I love you with the love of the Lord. और हैप्पी क्रिसमस का जो संदेश है वो संदेश भेजना बंद कर दें आज के बाद, लेकिन तुम्हारे जो विश्वासी भाई बहन है सबके घरों में जाएं और एक दूसरे को विश करें हैप्पी क्रिसमस। With me, we don't visit each other's house. How एक can you दूसरे celebrate के Christmas? हम एक दूसरे के घरों में नहीं जाते तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे कैसे? Latest technology, all latest वो आएगा उसमें तेरा नाम डालो. Happy Christmas, Hallelujah. अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया है, ऐसे कुछ एप्स आए हैं सिर्फ उनका नाम डालते तो ऐसे कुछ आता है। You should know the meaning of Christmas. क्रिसमस का मतलब जानना जरूरी है। He took it away. उसने सब कुछ निकाल दिया। Hallelujah. The word became flesh. वो वचन जो है वो शारीरिक रूप में आया। If your text is a text in your text, अगर तुम्हारा जो टेक्स्ट अगर टेक्स्ट ही रह जाता है, Jesus will never become real. तो यीशु तुम्हारे लिए रियल नहीं, He सच will नहीं be बनेगा। only in your cell phone.
केवल तुम्हारे सेलफोन में ही You रहेंगे। need to experience Jesus. तुम्हें यीशु को एक अनुभव करना है। You know, people were waiting for 400 years. लोग 400 साल के लिए रुके From हुए थे, Malachi to Matthew, मलाकी से मत्ती तक। the Bible says there was 400 silent years. बाइबल कहता है 400 साल के लिए शांतता There थी, was no prophets. कोई नबी नहीं There थे, was no prophecies. कोई भविष्यवाणी नहीं। Everybody was शांत हो गया था, शब्द हो गया था. Everybody was soon. सब लोग जो है बहुत शांत हो गए थे। You know, suddenly one man अचानक एक आदमी rises up. उठता है, His name is John the Baptist. उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा। Suddenly he comes वो अचानक आता है like a fireball. और एक फायरबॉल के समान। Repent. वो कहता है पश्चाताप करो, मन Repent and be फिराओ, born again. मन फिरा और नया जन्म ले लो। God will forgive your sins. प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा The करेगा। one who is coming after me, वो जो मेरे पीछे आता he है is coming. वो आ रहा है, I am not worthy to unsandal his chappals, his sandals. और उसकी जूतों को भी निकालने का मैं उस काबिल नहीं। But I am giving you the baptism of water, but he will give you the baptism of water and fire. और मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें अग्नि का बपतिस्मा And देंगे। his name is Jesus. और उसका नाम है But when यीशु। he comes, लेकिन वो जब आएगा, when he reveals himself, जब वो अपने आप को प्रकट करेगा, all your sins have been taken away. तुम्हारे सारे पाप जा चुके Now हैं। this morning I want to tell you, आज सुबह को कहना चाहता हूँ, never only make the message experience in your life. केवल संदेश को नहीं दे, लेकिन संदेश को अपने जीवन में लागू करें। What is Christmas all about? क्रिसमस किसके बारे में है? Christmas is all about Jesus saved me. क्रिसमस यही कहता है, संदेश देता है कि यीशु ने मुझे बचाया। Hallelujah. The Christmas is all about He has taken it all. ये क्रिसमस संदेश यही है कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को Christmas उठा is लिया। all about I don't want to miss the point. क्रिसमस यही है कि मैं जो मुख्य मुद्दा है उसे नहीं चूकना Turn to चाहूंगा। somebody and say, don't miss the point. किसी से कहो, किसी क्रिसमस का मुद्दा मत चुको। What the wife said? पत्नी ने क्या कहा? What the wife said? पत्नी ने क्या कहा? Until जब तक you came, जब तक तू मेरे पास नहीं it आया, was only words. वो शब्द केवल शब्द ही थे। Why I came with you? मैं क्यों तेरे साथ वापस लौट आई? Why I was hungry to come and settle without any words? क्यों मैं इतनी भूखी थी कि मैं वापस तेरे पास वापस तेरे साथ लौटना I चाहती थी? saw your words in action. क्योंकि तू जो शब्द कह रहा था, शब्द लिखे थे मेरे लिए मैसेज में, वो शब्द को मैंने कार्य होते हुए देखा। Jesus only speaking, यीशु केवल बोलता बोलता रहता, but it would have been only words. तो केवल वो शब्द ही रह जाते। Jesus revealed himself. लेकिन यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। And that is the Christmas. वही क्रिसमस है। Hallelujah.